students, welcome to my channel Gyan Ganga. Students, now we are going to talk about another poem by William Wordsworth, that is She Dwelt Among the Untrodden Ways. So this is also a part of 5 series of Lucy poems. तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस प्रेजेंटेशन में नया वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज. एंड स्टूडेंट्स, दिस प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी बोथ in Hindi and English language so that everybody can be benefited from this presentation. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना नया पोएम शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो कि है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज. सो इट इज़ अ पोएम रिटन बाय William Wordsworth. She dwelt among the untrodden ways. So first of all, we have to know some facts about it. It is a poem published in Lyrical Ballads in the 1800th edition, and it is the part of 5 work series, that is Lucy poems. So here we have to remember that it is a poem which is published in Lyrical Ballads in the 1800th edition, and this is a part of the 5 work series, that is the Lucy poems. So it is a part of the Lucy poems, and the speaker of the poem talks about the loss of Lucy, who died young. Here the speaker is talking about a girl Lucy who died young, though it is not clear that what is the relationship with the speaker, or what is the relationship with the poet, that is Wordsworth. So it's talking about the loss of Lucy, or we can say the death of Lucy, and that Lucy died young. And when we talk about the rhyme scheme, here ABCB rhyme scheme is used. So just remember, you can be asked a question that what is the rhyme scheme of she dwelt among the untrodden ways. This you have to remember, that ABCB is the rhyme scheme used in this poem, because such questions are asked in TGT, PGT or NET exam. So this is specifically designed for UP, TGT, PGT. So just keep these things in your mind. तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये जो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, ये जो पोएट्री है ये कहाँ पब्लिश हुई. तो ये पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेंस के 1800th एडिशन में, और ये मतलब जो लूसी सीरीज़ की जो 5 पोएम्स हैं उसमें से एक है. तो लूसी सीरीज़ में 5 पोएम्स हैं जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं. हालांकि वर्ड्सवर्थ ने इनको एक साथ नहीं किया था, लेकिन ये बाद के लोगों ने इसमें सिमिलरिटी देख के इसको लूसी पोएम्स का एक ग्रुप बना दिया. ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि ये आपसे पूछ सकता है कि भाई लूसी पोएम में है कि नहीं है. ये आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सी पोइट्रीज हैं जो लूसी पोएम के अंतर्गत आती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर है कि एक लिरिकल बैलेड में 1800 एडिशन में पब्लिश हुई थी, और ये लूसी सीरीज़ जो है पोएम की, उसकी एक पार्ट है ये पोएम शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज. और जो स्पीकर है वो इसमें ये बात कर रहे हैं कि भाई जो लूसी है, मतलब उसकी डेथ हो गई, उसका दुख यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ उस चीज़ से, और वो बहुत यंग मर गई, बहुत ही यंग थी जब वो मर गई, जब वो एक्सपायर हो गई. तो ये यहाँ पे बताया है स्पीकर ने. ठीक है, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ बताया कि भाई लूसी किस तरह से एक्सपायर होगी, बहुत ही यंग. और अगर हम राइम स्कीम की बात करें, तो राइम स्कीम इसमें ABCB राइम स्कीम है. ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इसमें ABCB राइम स्कीम है. Okay, now we'll see the next slide. Lucy poem consists of what? So you have to remember that what are the Lucy poems. So it is a collection of, or a kind of similarity is there in these poems. So these are called as Lucy series poems. So it is Lucy poems consist of what? It consists of strange fits of passion have I known, number 1. Number 2, she dwelt among the untrodden ways. Number 3, I travelled among unknown men. Number 4, 3 years she grew in sun and shower. And number 5, a slumber did my spirit see. So you have to remember that these are the Lucy poems. She dwelt among, strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. I travelled among unknown men. 3 years she grew in sun and shower.
and a slumber did my spirit seal. So all these five you have to remember. These names you have to remember that these are the Lucy poems. Okay. तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि देखिए जो लूसी पोएम्स है उसमें 5 पोइट्रीज हैं, तो कौन कौन सी उनका नाम याद रखिएगा. स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी. तो ये पांचों लूसी पोएम है. Next, we have that the critic Kenneth Ober says that this poem talks about the growth, perfection, and death of Lucy. So, this is what we have to keep in mind, that what critics said about. So, you can be asked a question that which critic mentioned like this, that this poem is for about the growth, perfection, and death of Lucy. This comment or this statement will be given, and you will be asked that who said like this, who commented like this about this poem. So, the critic Kenneth Ober says that this poem talks about the growth, perfection, and death of Lucy. That is about the she dwelt among the untrodden ways. Who commented like this? Kenneth Ober. So remember this name and this statement also. So you have to remember these things. That this is very important because all these points, whatever I have included here, there is a lot of probability that this can be asked in your TGT, PGT, or NET exam. So what was the comment? So comment is that this poem talks about the growth, perfection, and death of Lucy, and who gave this comment? It is Kenneth Ober. The Lucy poems were written in Hamburg, Germany between 1798 and 1801. So this also you can remember that where these Lucy poems were written. It was written in Hamburg, Germany between 1798 and 1801. So you can also be asked this question also, that where at what place Lucy poems were written. It is in Hamburg, Germany, and during which time it was written, 1798 and 1801. So this you have to keep in mind, right? So it is written between 1798 and 1801 and in Hamburg, Germany. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि देखिए एक क्रिटिक हुए जिनका नाम था केनेथ ओबर, इन्होंने कुछ कमेंट किया शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज के बारे में. ये कमेंट किया कि ये पोएम जो है क्या करती है, पोएम टॉक्स अबाउट द ग्रोथ, परफेक्शन एंड डेथ ऑफ लूसी. तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह का कमेंट किसने किया, या ये कमेंट किसने किया, या इन्होंने क्या कमेंट किया, किसके बारे में किया, किस पोइट्री के बारे में ऐसा कमेंट किया वर्ड्सवर्थ की. तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, इसलिए इस तरह क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो याद रखिएगा केनेथ ओबर ने कमेंट किया है, और क्या कमेंट किया है कि दिस पोएम टॉक्स अबाउट द ग्रोथ, परफेक्शन एंड डेथ ऑफ लूसी. और लूसी पोएम जो है ये कहाँ रिटर्न थी, तो ये कब लिखी थी, किस टाइम पे लिखी, तो ये हैम्बर्ग जर्मनी में लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने 1798 और 1801 के बीच में. तो आप याद रखिएगा कि ये पोएम जो है 1798 और 1801 के बीच में लिखी गई थी, और ये हैम्बर्ग जर्मनी में लिखी गई थी. ठीक है. Yes, the poem consists of 3 quatrains. This poem contains what? 3 quatrains. You can be asked that how many quatrains are there in She Dwelt Among the Untrodden Ways. So, what are the structure of poem? It has quatrains. These questions can be asked. So, it is a ballad and which tells about the story of Lucy. Whether it is a ballad or not, so you have to know that this is a ballad and it consists of 3 quatrains, right? And the poem talks about the neglect of beauty and virtue of Lucy by the people where she lived. So this poem also talks about that how people neglected the beauty and virtues of Lucy where she was living. So there is a kind of neglect from people about Lucy. So Lucy was neglected. She is a neglected figure. Her beauty was neglected. So this is what this poem actually talks about. So what actually this poem talks about? It talks about the neglect of beauty of and virtue of Lucy by the people where she lived. तो एक और चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें 3 क्वार्टरेंस है. कितने क्वार्टरेंस है? 3 क्वार्टरेंस है. तो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज में क्या है? 3 क्वार्टरेंस है. ठीक है. तो आपसे पूछ सकता है इसमें क्या है, तो क्वार्टरेंस है. इसमें कितने हैं? 3 हैं. और ये एक बैलेड है जो कि लूसी की स्टोरी को बताता है. ठीक है. तो याद रखिएगा ये एक बैलेड है जो कि लूसी की स्टोरी को बताता है, और इसमें 3 क्वार्टरेंस हैं. और ये पोएम में ये भी बात की जाती है कि किस तरह से उसकी सुंदरता, उसकी वर्चूज़, उसकी वैल्यूज़, उसकी क्वालिटी को नेगलेक्ट किया गया, यानी कि लूसी की क्वालिटीज़ को नेगलेक्ट किया लोगों के द्वारा. तो लोगों द्वारा लूसी को नेगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया, अनदेखा गया. हालांकि बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे कैरेक्टर की थी. ठीक है.
तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसको लोगों के द्वारा नेगलेक्ट किया जाता था, क्योंकि वो एक मेड थी, है ना, एक सर्वेंट थी, नौकरानी थी भाई, तो कौन उस पर इतना ध्यान देता है। लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो इस पोएम में यही बताया गया है। Now we'll start the poetry line by line. We'll understand what is there in this poem. So this is the first stanza of the poem. She dwelt among the untrodden ways, besides the springs of Dove. So poet is saying that she, who is she here actually we don't know, but it is Lucy. So she dwelt among the untrodden ways. It means she was living in an area where very few people visited. It was an, you can say, outside area from the main city, or it is a area which is separated from the main area of the place. So it is an untrodden ways. It means untrodden means which was less traveled, where actually very few people visit. So this is the area. Beside the springs of the Dove. Dove is a river in England, and so here there were springs of the Dove, and at that place she was living. So she was living near the springs of the Dove river. And yes, a maid whom there were none to praise and very few to love. So she is a maid. It means the girl who is being talked here is a maid, and there were none to praise. So nobody was there to love her or to praise her, to love her, or to say that she is beautiful, or to say that she is good, to praise her work, because she is a maid. She is just a servant. So nobody was there to love her, to praise her. So this love is not that particular love that lovers give each other, but it is a normal love that a human being loves each other. So she was not getting, it means respect, not getting any kind of praise, any kind of recognition for her work, for her beauty, and she was a neglected figure, we can say. So she was a neglected figure. Nowhere. So here we come to know that she was a neglected girl. तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ है वो एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ऐसे एरिया में रहती थी जो कि बहुत कम, जहाँ पे लोग आते जाते थे, और वो बगल में था किसके, स्प्रिंग्स ऑफ डव। डव एक रिवर है, उसके स्प्रिंग्स के बगल में, वहाँ पे आसपास के एरिया में कहीं पर वो था। तो शी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वेज, मतलब वो ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पर बहुत कम लोग, अनट्रोडन मतलब होता है बहुत कम चला गया रास्ता, बहुत कम जहाँ लोग आते जाते हों। और वो एक मेड थी, मतलब एक नौकरानी थी, और कोई उसकी मतलब तारीफ़ भी नहीं करता था, कोई उसकी ब्यूटी को भी नहीं एडमायर करता था, कोई उसको प्यार भी नहीं करता था, मतलब उसको इज्जत सम्मान, यहाँ प्यार का मतलब हर चीज़ से इज्जत सम्मान, अच्छी दृष्टि से देखना, उसको कोई मतलब चाहत भरी नज़रों से कोई नहीं देखता था। वो एक नौकरानी थी क्योंकि, और उसी कोई बड़ाई भी नहीं करता था, ना सुंदरता की, ना काम की, ना किसी चीज़ की, मतलब वो एक नेगलेक्टेड फिगर थी, मतलब एक तरह से वो कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। तो लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की थी, पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये स्टैंजा क्लियर होगा। पहले मैंने इंग्लिश में समझा दिया, फिर मैंने हिंदी में बता दिया। ठीक है, तो ये गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वो गर्ल लूसी है, वो लास्ट में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर है। Yes, in next stanza, the poet says that a violet by a mossy stone, half hidden from the eye. पोएट जो है उस गर्ल को कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक वायलेट, मतलब एक फ्लावर है वायलेट कलर का, उससे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि मोजे स्टोन मतलब पत्थर के ऊपर छोटी मोटी जो घास फूस काई जैसी ज़मीन होती है, उसके पीछे धीरे से चुपके से फूल उगा हुआ है, थोड़ा सा छुपा हुआ है, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, सो नो बडी इज एबल टू सी इट। सो द पोएट इज कंपेयरिंग द गर्ल with a violet. It means a flower. Violet means a flower, and which is hiding behind a mossy stone, which is little bit visible. It is half hidden
from the eye. So if somebody not looks carefully, he'll not be able to notice that beautiful flower behind the stones, mossy stones. So this is what poet says, that she is also beautiful like this, fair as a star when only one is shining in the sky. The poet also says that she is fair, means she is good, she is beautiful, she is good natured, everything. This fair not only represents her fair color, but all the good qualities of that girl is represented by this fair. So she is fair as a star. So she is fair like a star, just like when only single star brightly shines in the sky. She is also such a good girl. She is compared to a star, and she is compared to a violet flower. So beauty of Lucy is here presented by the poet, that she is so much beautiful, she is very good, she is attractive, she is pure. So all the good qualities are represented by these words. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो लूसी यानी कि जो गर्ल है वो एक वायलेट की तरह, मतलब वायलेट कलर का एक फ्लावर है जो घास फूस उगे, काई वाई लगे, पत्थर के पीछे जो धीरे से छोटा सा एक फूल उग रहा होता है, जो किसी को दिख नहीं रहता है, आधा छुपा होता है, हाफ हिडन फ्रॉम द आई। मतलब आते आते नॉर्मली इसको कोई नोटिस नहीं कर सकता, जब कोई ध्यान से उस जगह पर देखेगा तभी उस फूल की सुंदरता उसे दिखाई देगी। तो पोएट जो है वो लूसी को कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक वायलेट से, मतलब एक वायलेट कलर के फ्लावर से जो कि पत्थरों के पीछे छुपा हुआ है, जो आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा, इतना सुंदर है कि उसको नॉर्मली कोई देख नहीं पाता, इतना सुंदर जब उसको आप ध्यान से देखेंगे तभी पता लगेगा कि वो कितना सुंदर है। इसलिए बोला है कि हाफ हिडन फ्रॉम द, मतलब ज़्यादातर लोग उसको नोटिस ही नहीं कर पाए, उसकी अच्छाई को, उसकी खूबसूरती को लोग नोटिस ही नहीं कर पाए। तो लूसी को, यानी कि जो गर्ल यहाँ पे बात की जा रही है, उसको पोएट ने इस तरह से कंपेयर किया, और उन्हें ये भी कंपेयर किया कि वो एक फेयर स्टार की तरह है, जैसे मतलब पूरे आकाश में कोई एक सितारा बहुत तेज़ी से चमक रहा हो, तो उस तरह से जैसे कोई एक ही सितारा हो और दिख रहा हो और बहुत तेज़ी से चमक रहा हो पूरे आकाश में, तो उस तरह से फेयर है, मतलब सुंदर है, अच्छी है, गुड नेचर्ड है, ब्यूटीफुल है, ये कहना चाहते हैं पोएट। तो पोएट ने एक फेयर स्टार्स और एक वायलेट से कंपेयर कर दिया उस गर्ल की सुंदरता को, ब्यूटी को, उसकी अच्छाई को, उसकी गुडनेस को। तो पोएट यहाँ पे इस तरह से लूसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कितनी अच्छी है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब उसकी सुंदरता की तरफ। तो दिस इज हाउ पोएट इज डिस्क्राइबिंग इन द second stanza and the last stanza. She lived unknown and few could know when Lucy ceased to be. So Lucy was living unknown. When she was living, very few people know her, and very few people were in her contact actually. And when Lucy ceased to be, and when Lucy is dead, very few people know, very few people care about it. So there is no difference made to the world. But she is in her grave, and oh, the difference to me. Though the death of the Lucy has affected the poet very much, because poet is concerned with the Lucy. When Lucy ceased to be, when Lucy died, the difference is made only to the poet. So is describing here that what importance was there for poet. So how important Lucy was there for poet. So poet is describing there is a difference. It makes a difference. It makes a big difference to poet when Lucy died. So this is what we have to remember, that very few people know Lucy when she was living. Now when she is dead, very few people are affected by her death because she is just a maid. But the poet says that the difference is made to poet because somehow he is connected to the Lucy. So poet says that, oh, the difference to me. He says that there is a big difference to me. It has changed a lot of things for poets. When now she is in her grave, it means when she is now dead, the poet is the one who is affected very much. So poet affected, poet gets affected means Wordsworth gets affected. तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा में क्या हो रहा है, पोएट ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही अनजान सी ज़िंदगी उसने जी, बहुत कम लोग उसको जानते थे, और जब वो मर गई, व्हेन लूसी सीज टू बी, जब उसकी डेथ हो गई तो भी बहुत कम लोग जाने कि हाँ लूसी कब मरी, कब जी, कहाँ जी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा लूसी के
जीने से, मरने से, उसके जीने के टाइम में ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते थे, मरने के बाद भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि हाँ भाई लूसी मर गई है, क्या हुआ। अब लूसी अपनी ग्रेव में, मतलब वो मर चुकी है, लेकिन इस चीज़ से फ़र्क किसको पड़ रहा है? सिर्फ पोएट को। द डिफरेंस टू मी, पोएट कह रहा है कि इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा कि लूसी मर गई, मतलब लूसी बहुत खास थी पोएट के लिए। अब देखिए यहाँ पे लूसी की आइडेंटिटी कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुई, जितने भी क्रिटिक्स हैं, पूरा अगर आप ऑल पूरा आप रिसर्च करेंगे तो ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि लूसी कौन थी। लोग फिर भी मतलब गेस करते हैं कि शायद लूसी उसकी लवर थी, शायद उसकी बेटी थी, अपनी बेटी के रूप में मतलब प्रेजेंट कर रखा है लूसी को लवर के रूप में। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता है कि लूसी है कौन। पोएट ने इस चीज़ को कभी भी क्लियर नहीं किया। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि इस तरह से पोएम ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद चलिए जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। वैसे समरी तो आप वैसे ही समझ गए होंगे पोएट्री पढ़ते वक्त ही। Now we'll just discuss summary what happens in first stanza. In first stanza, poet talks about a girl who live in a place where very few people visit and it is near the Dove River. And the girl was neither praised nor loved by someone, or anyone not loved her, anyone not praised her. She's presented as a lonely figure. So in first stanza there is a girl whose name is not known, but she is presented as a lonely figure. So she is presented as a lonely figure. Nobody was there to love her, nobody was there to praise her, as she is a maid and she lives near Dove River, and it is a place where very few people visited. And so this is what poet talks about a girl who lives near Dove River. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बात कर रहे हैं? गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डव रिवर के पास रहती है, और ऐसी जगह पे रहती है जहाँ बहुत ही कम लोगों का आना जाना है। वो एक नौकरानी है और ना तो उसे कोई बड़ाई करता है, ना उसे कोई प्यार करता है, ना उसे कोई अच्छी दृष्टि से देखता है। मतलब उसको जानने पहचानने वाले, मानने वाले, जानने वाले बहुत कम लोग हैं। और उसको मतलब एक तरह से कहने का लोनली फिगर के रूप में यहाँ प्रेजेंट किया कि बहुत ही कम लोग वहाँ से रहते थे। अनट्रोडन वेज में रहती थी वो, मतलब जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना था वहाँ पर रहती थी वो। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने जो है ये डिस्क्राइब किया कि एक गर्ल जो कि बहुत ही अकेली ज़िंदगी जी रही है, जिसको बहुत ही कम चाहने वाले हैं। ठीक है, yes, I hope it is clear. In next stanza the poet describes the beauty of the young girl. So in next stanza actually poet is describing her beauty, and the poet compares her to a violet flower and to a star which shines brightly in the sky, which is hardly noticed by anyone because everybody is busy in their life. Nobody notices a small flower behind a stone, that how beautiful is that, or a single star how it is shining in brightly in the sky. So this beauty is present in that girl. So he's comparing the girl like a beautiful flower and like a brightly shining star in the sky, but very few people noticed it. So mainly in second stanza poet has described her beauty. तो सेकेंड स्टेंजा में क्या होता है कि पोएट सिर्फ उसकी सुंदरता को बता रहे हैं कि उससे कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी मासूम, मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एकदम परफेक्ट गर्ल के रूप में उसको प्रेजेंट किया है। और उसको कंपेयर किया है किससे? एक वायलेट फ्लावर से। कितना सुंदर होता है, जो पहाड़ पत्थर के पीछे उग रहा होता है, छोटा सा होता है, उसको कोई देख नहीं पाता, आधा छुपा होता है, आधा दिख रहा होता है, तो बहुत सुंदर होता है। लेकिन जब कोई उसे बहुत गौर से देखता है तभी उसकी सुंदरता को वो पहचान पाता है। और यह उसने कंपेयर कर दिया कि एक ब्राइट स्टार की तरह जो कि अकेला आसमान में चमक रहा होता है, तो कितना सुंदर लगता है वो। तो इस तरह से उसकी सुंदरता को उन्होंने एक फ्लावर से और एक तारे से उसकी सुंदरता को कंपेयर किया है सेकेंड स्टैंजा में। नाउ इन थर्ड स्टैंजा and the last stanza poet again emphasizes that she is known to very few people. So poet again he is saying that she is known to very few people because when she was living she was known to very few people, and when she is now dead very few people knows that Lucy is dead. Now in this last stanza he clears that the girl is the Lucy, and but here poet says that he is deeply concerned about the girl. And actually who is Lucy, her identity is revealed here. Actually who is Lucy here? He says that the girl is Lucy. Actually earlier it was not known that which girl he is talking about, but in the last stanza the girl's identity is revealed, that that girl is Lucy, and with whom poet has lot of concern, and poet is affected by the death of Lucy. So this is what we have to keep in mind. तो स्टूडेंट्स थर्ड स्टेंजा में क्या होता है, पोएट फिर से अगेन एम्फेसाइज करते हैं कि बहुत ही कम लोग लूसी को जानते थे, और लूसी जब जिंदा थी तब भी उसको बहुत कम लोग जानते थे, और जब लूसी मर गई तब भी बहुत कम लोगों को फ़र्क पड़ा, या बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ लूसी मर गई।
लेकिन इस लास्ट स्टैंजा में पोएट ये क्लियर करते हैं कि जिस गर्ल के बारे में बात कर रहे थे वो लूसी है, और पोएट ये भी बोलते हैं कि मतलब मुझे बहुत फ़र्क पड़ा उस चीज़ से। तो उनको बहुत फ़र्क पड़ा, यानी कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे लूसी से। तो पोएट लास्ट स्टैंजा में चीज़ क्लियर करते हैं कि जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लूसी है, और मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यानी कि वो उनके लिए बहुत ही नियर एंड डियर थी, ये कह सकते हैं। लेकिन हालांकि हम अगर पूरी पोएट्रीज को पढ़ें, सारी लूसी पोएम्स को, कभी भी क्लियर नहीं हुआ कि लूसी है कौन। ये क्लियर नहीं किया पोएट ने कभी भी, उसकी आइडेंटिटी कभी बताई नहीं क्लियर कट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसकी समरी भी देख ली है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। And if you like the presentation, subscribe it and share my presentation to your friends also, and tell your friends to join my group on WhatsApp, or you can follow me on an Academy Learning app. There I am teaching, but due to some technical reason I am not teaching there nowadays. So I am teaching only on YouTube now. So you can follow me here and tell your friends also to follow me. Now we'll talk about the theme. And if we talk about the theme of the poem, she dwelt among the untrodden ways. So we simply find that the girl was in living in solitude. So solitude is the theme. Sadness. She is dead. Death is there. So sadness is there. Love of poet. So how poet presents his love. Mystery is there. Who is Lucy? We don't know. And there is death also. So all these things are the themes. So solitude is there. Sadness is there. Love of poet. So poet loves actually Lucy. At last poet says that difference to me. There is a lot of difference. There is he is concerned with Lucy. This is what poet actually says, that he is affected by the death of Lucy. It means he has love for Lucy, and mystery is there. We don't know who is Lucy, and there is death. Lucy died, and she lived very lonely life. Very few people know her. Now she is dead. Still, very few people know her. So these are the themes. So you have to remember that what are the main themes. There is solitude, there is sadness, there is love of poet, there is mystery, there is death. All these things are the very important themes of the poem She Dwelt Among the Untrodden Ways.
तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हम मेजर थीम्स की बात कर रहे हैं कि शी ड्वेल्ट अमंग द अनटोलन वेज में क्या क्या थीम थे, तो सॉलिट्यूड है मतलब अकेलापन है, सैडनेस है मतलब दुख होता है कि वो लड़की अकेली है, दुखी है, यहाँ पे डेथ हो जाती है उसकी, तो पोइट भी उससे दुखी होते हैं। लव ऑफ पोइट है कि भाई पोइट उसको चाहते हैं, उन्हें बड़ा फर्क पड़ता है जब वो मर जाती है तो बहुत अफेक्टेड होते हैं उसको। मिस्ट्री है, शुरू में हमें पता नहीं है किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं वो। डेथ है, तो ये सारी इसमें थीम्स हैं, याद रखिएगा ये सारी थीम्स इसमें अंदर घूम फिर रही हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। सॉलिट्यूड, सैडनेस, लव ऑफ पोएट, मिस्ट्री, डेथ, तो ये सारी इसमें थीम्स हैं। Now, if we talk about the poetic devices in lines, a violet by a Moses stone, we find that there is a metaphor is there. The girl is compared to a violet flower for her beauty. So she is directly said that she is like a violet. So the line is that a violet by a Moses stone. So she is directly made a violet. So it means that girl is very beautiful like a violet flower, which is growing behind a mossy stone. So here we find that there is a metaphor. So metaphor is there in the line a violet by a mossy stone. So different poetic devices we have. First we see that there is a metaphor. तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो अगर हम लाइंस में देखें अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन, तो इसमें क्या है, मेटाफर है कि भाई उस लड़की को उन्होंने सीधे बोल दिया कि वो वायलेट की तरह है, मतलब एक नीले रंग के, मतलब बैगनी रंग के एक फूल की तरह है, वो बहुत सुंदर है मतलब। तो उसको कंपेयर किया गया एक वायलेट फ्लावर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ये देखिए यहाँ पे मेटाफर है, उसको डायरेक्टली बोल दिया क्या कि एक वायलेट है। आप देखिए ध्यान से इसमें, ये देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा अ वायलेट, है ना। तो अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन, मतलब कि उसको एक वायलेट बना दिया। वायलेट मतलब यहाँ पे क्या है, एक वायलेट कलर का फ्लावर जो बहुत सुंदर होता है। तो उस लड़की को ऐसा बता दिया कि वो इतनी सुंदर है, ठीक। पहली हो गई। दूसरी हो गई सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म इज यूज्ड व्हाइल डिपिक्टिंग द ब्यूटी ऑफ गर्ल इन वायलेट एंड स्टार। यहाँ पे सिम्बोलिज्म भी है। वायलेट एंड स्टार आर सिम्बल्स ऑफ व्हाट, ब्यूटी। So star is very beautiful, violet is also used for beauty, so symbolism is also there. So in star and in violet we find the symbolism. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखिए सिम्बोलिज्म भी मिलता है। सिम्बोलिज्म में क्या है कि भाई वॉयलेट और स्टार किसको डिपिक्ट करते हैं, किसके सिंबल हैं ये एक्चुअली ब्यूटी के सिंबल हैं। तो इस तरह से पोएट ने यहाँ सिम्बोलिज्म का भी यूज़ किया है। वॉयलेट और स्टार दोनों ही किसको डिपिक्ट करते हैं, ये दोनों ही डिपिक्ट करते हैं ब्यूटी को, तो ब्यूटी ऑफ गर्ल। तो सिम्बोलिज्म इज यूज्ड व्हाइल डिपिक्टिंग द ब्यूटी ऑफ गर्ल इन वायलेट एंड स्टार, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे डिवाइसेज हैं। एलिट्रेशन हो गया, एजोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया, एंजाममेंट हो गया, इमेजरी हो गया, सिमिली हो गया। ये हमने पिछली पोएम से भी डिस्कस किया था, तो आई थिंक आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं एलिट्रेशन और रेजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एंजाममेंट, इमेजरी और सिमिली सब देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर। चलिए पोइट्री पर आते हैं पहले अब हम। ये रही पोइट्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हम एजोनेंस की बात करें तो एजोनेंस मतलब होता है जहाँ पर क्या रिपीट हो रहा हो, वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा हो, है ना, वो होता है एजोनेंस। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, आप देखिए ज़रा, ये अब देखते हैं हम ध्यान से इसको, ठीक है। अब आप देखिए कि कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए ओ ओ, है ना। तो यहाँ पे हमारा वॉवेल यानी कि यहाँ पे एजोनेंस है। शी ड्वेल्ट अमंग दी अनट्रॉडन वेज, तो यहाँ पे अमंग और यहाँ पे अनट्रॉडन आप देख सकते हैं ओ रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे जहाँ भी मतलब वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा हो इसका मतलब वहाँ पे एजोनेंस है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे वायलेट में आपने देख लिया, वायलेट में आपको पता ही है क्या है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एज अ स्टार, है ना। तो एज अ स्टार में क्या है, लाइक एज का यूज़ किस में यूज़ करते हैं, सिमिली में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप सिमिली देख रहे हैं, ये देखिए, देखिए अब आप
फेयर एज अ स्टार, है ना, लाइक अ स्टार, ऐसा एज अ स्टार, यहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ होती है वहाँ सिमिली यूज़ होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए एच, एच हाफ हिडन, यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन हो रहा है, एच एच रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ढूंढ लेंगे आराम से। हाफ हिडन में क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे बोल दिया कि भाई फेयर एज अ स्टार, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है स्टार, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा इमेजरी भी यूज़ हो रहा है ना, इमेजरी भी यूज़ हो रहा है कि भाई हमारे दिमाग में तुरंत आता है स्टार की इमेज, तो मतलब जहाँ भी हमारे सेंसेस यूज़ होती हैं वहाँ पे स्टार आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार है, जहाँ भी हमारी सेंसेस यूज़ होती हैं, जैसे कि स्टार है यहाँ पे, शाइनिंग इज द स्टार। अब जैसे उसने बोल दिया था कि वायलेट बाई मोसेस, वायलेट तो फूल, एक सुंदर सा फूल, तो हमारी आइज़ का यूज़ हो रहा है, स्टार की बात हो रही है तो भी आइज़ का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से मतलब हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखा, जैसे आपने यहाँ पे देखा था पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो एडिटेशन हमने देख लिया, एजोनेंस देख लिया, कॉन्सोनेंस जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, इंजैममेंट और इमेजरी, हाँ इमेजरी भी हमने देख लिया। इंजैममेंट अब दिखाते हैं। इंजैममेंट मतलब होता क्या है, रन ऑन लाइंस, यानी कि मीनिंग जब एक लाइन से दूसरी लाइन तक चला जाता है ना, तो वो होता है। अब कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह आपको मिल जाएगा ये। जैसे आप देखिए, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, है ना, एक लाइन खत्म होगी, अनट्रोडन वेज में रहती थी, लेकिन कहाँ रहती थी पता नहीं है। बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डब, देखिए फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में पूरा मीनिंग है। अ मेड whom देयर वर नन टू प्रेज एंड वेरी फ्यू टू लव, तो इस तरह से आप देखते हैं कि पहली लाइन से दूसरी लाइन में मीनिंग चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि जो मीनिंग होता है, जो सेंटेंस होता है, वो एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं एंजैममेंट या रन ऑन लाइन्स। अब जैसे देखिए, यहाँ बड़ा अच्छा मिल जाएगा आपको, देखिए आप इंजॉयमेंट या रन ऑन लाइन्स का हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ना। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए अ वॉयलेट बाय अ मोजेस स्टोन, एक वॉयलेट है मोजेस स्टोन के पीछे, कैसा है वो, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, एक छोटा सा नीले रंग का फूल है जो मोजेस स्टोन के पीछे है, जो कैसा है, हाफ हिडन फ्रॉम द, जो हमारी आंखों से आधा छुपा हुआ है, यानी कि पूरा मीनिंग यहाँ नहीं मिल रहा हमें। जब ये दो लाइनें हम ले रहे हैं तब जाके हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है। एक वॉयलेट फ्लावर है मोजेस स्टोन के पीछे है, जो हाफ हिडन है फ्रॉम द आई, मतलब थोड़ा सा छुपा हुआ है, चलो आधा ही वो दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिख रहा है, मतलब हाफ हिडन फ्रॉम द आई, मतलब जल्दी आते जाते हमें वो नहीं दिखेगा, हाफ हिडन है, आधा छुपा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है, वो थोड़ा नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं एंजॉयमेंट, मतलब जब मीनिंग एक लाइन से दूसरी लाइन तक ट्रैवल कर जाए पूरा, यानी कि इसी एक लाइन से पूरा मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है, ये हमारा क्या होता है, एंजॉयमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी डिवाइसेस में आराम से ढूंढ सकते हैं लिटरेशन। कॉन्सोनेंस, हाँ कॉन्सोनेंस हमने नहीं दिखा था शायद, जहाँ पे मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हों।
तो स्टूडेंट्स आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, यहाँ पे बस धीरे से ऐसे ही ढूंढ लेनी है सारी डिवाइसेस ना। अब जैसे आप अगर कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टी है ना, शी डेल्ट अमंग दी, टी यहाँ सब रिपीट हो रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स भी है हमारे पास, ये देखिए टी 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 है ना, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स भी है। और ऐसे ही आप बहुत जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ भी आपको मिल जाए। जैसे डब्लू है यहाँ इस लाइन में देखिए, अ मेट whom there were none to praise। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें हमने सारी डिवाइसेस भी ढूंढ ली हैं। इसके बाद हम 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं वो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये पोइट्री अच्छे से समझ में आई होगी। और इस पोइट्री में हमने सारे वो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो भी मतलब आपको जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये पोइट्री सबको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अच्छा लगे प्रेजेंटेशन तो सबको शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई प्रेजेंटेशन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो and tell them to join my WhatsApp group, and you can subscribe my channel and share it more and more so that everybody can be helped. And my all courses are free here. I'm not going to take any fee right now, and but I will run some few means few paid courses also. If you want to take the paid course, you can contact me separately on my WhatsApp number, but these are all free. And especially I am now teaching for UP, TGT, PGT and NET exam, or those who are doing their BA, their MA, their PhD, whatever they are doing. If they need any kind of help, they can get from my channel, and my number will be given to you. You can talk to me. So student, this is how we have completed She Dwelt Among the Untrodden Ways. And if you have any doubt, just ask me in comment box. I'll try to clear your doubt and make another presentation for that. So students, see you in the next presentation. Thank you.